کہانی کے شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت ذہین اور طاقتور بنانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک ایسا وائرس تیار کیا جس سے انسانوں کو ذہین اور طاقتور بنانے کی خواہش کو پورا کیا جا سکے۔ سائنٹسٹ اس وائرس کا ٹیسٹ انسانوں سے پہلے منکی پر کرتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ یہ انسانوں کے لیے سیف بھی ہے یا نہیں۔ کہا جاتا ہے جب منکی پر ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم منکی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ جس مشین کے ذریعے وہ وائرس منکی کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا تھا وہ مشین ٹوٹ جاتی ہے اور وائرس ہر جگہ پھیل جاتا ہے۔ یہ وائرس دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا، انسانوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیومنز کو بھی انفیکٹ کیا۔ ہیومنز پر اس کا بہت برا امپیکٹ ہوا، بہت سے انسان مارے گئے اور جو زندہ بچے ان کا دماغ ان کا ساتھ دینا چھوڑ چکا تھا۔ دوسری طرف منکیز پر ان کا الٹا اور اچھا اثر ہوا، وہ انسانوں کی طرح ذہین ہو گئے، چیزوں کو سوچنے سمجھنے لگے۔ آسان لفظوں میں اب منکیز نے بھی انسانوں کی طرح دنیا کو سنبھال لیا ہے۔ انسان جانوروں کی طرح جنگلوں میں نکل گئے، نہ کچھ بولتے ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ سبھی منکیز کا لیڈر تھا سیزر، جس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب ہم 300 سال کے بعد اس کے ٹرائب یعنی قبیلے کو دیکھتے ہیں۔ ایپس انسانوں کی طرح مل کر زندگی گزارتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے کے بھی قابل ہو گئے ہیں۔ اسی ٹائم پر ہمیں ملوایا جاتا ہے نووا سے، جو اس مووی کا مین کریکٹر ہے اور یہ ایک اسٹرائک لیڈر کا بھی بیٹا ہے۔ نووا اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑیوں پر جا رہا ہے ایگلز کے انڈے لینے کے لیے، یہ ان کی ایک رسم تھی۔ سبھی ایپس کے پاس اپنے اپنے ایگل پیٹ تھے، کیونکہ اب نووا بھی جوان ہو چکا تھا، اس لیے اسے رسم کے مطابق ایک ایگل کے انڈے کا خیال رکھنا تھا، جس میں سے ایک بچہ نکلتا اور اس ایگل کے بچے کو پال پوس کر ٹرین کرنے کے بعد ہی نووا کا پیٹ بنتا۔ یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایگلز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے منہ سے ایک خاص قسم کا ساؤنڈ نکالتے ہیں ایپس، اور اس کام میں سب سے زیادہ ماہر تھے نووا کے ڈیڈ، جو یہاں کے لیڈر تھے۔ دیکھا جاتا ہے کہ نووا اپنے ایگل کے پیٹ کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اسے بے صبری سے اس انڈے سے ایگل نکلنے کا انتظار تھا، لیکن شاید قسمت کو ایسا منظور نہیں تھا، کیونکہ ایک رات ان کے ٹرائب میں آ جاتے ہیں انسانی لوگ جو یہاں کھانے کی تلاش میں آئے تھے۔ وہ یہاں نووا کا ایگل کا ایگ چرا لیتے ہیں۔ نووا یہ دیکھ لیتا ہے اور یہ دیکھتے ہی انسان فوراً جنگل کی طرف بھاگتے ہیں، اور نووا اپنا ایگ بچانے کے لیے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ساری بھاگم دوڑی میں ٹوٹ جاتا ہے نووا کا وہ ایگ۔ یہ دیکھنے کے بعد نووا بہت دکھی ہوا، اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ پہاڑی پر جائے گا ایک اور ایگ ڈھونڈنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ پہاڑوں سے ایک نیا ایگ لیتا، اسے اپنے ٹرائب کے 2 ایپس وہاں زخمی حالت میں ملتے ہیں۔ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ مرنے والے تھے۔ نووا ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ وہ بتاتا ہے کہ ہمارا یہ حال دوسرے ٹرائب کے ایپس نے کی ہے، جو ہماری ہی طرح مل کر سمندر کے کنارے رہتے ہیں۔ زخمی ایپس نووا سے کہتے ہیں شاید اس ٹرائب کے ایپس ہم سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ہم پر حملہ کر کے ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تو یہ بھی پلاننگ ہے کہ وہ ہمارے بچے ہوئے ایپس کو غلام بنا لے، اور جو ان کی غلامی سے انکار کرے گا اسے مار دیا جائے گا۔ دکھایا جاتا ہے کہ سمندری ایپس نے نووا کے جنگل کا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لیا تھا اور وہ لوگ اپنے ہتھیار لے کر بھی جنگل میں حملہ کرنے کے لیے نکل چکے تھے۔ دوسری طرف نووا بھی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ٹرائب کی طرف آتا ہے، لیکن اس نے آنے میں دیر کر دی۔ دوسرے ٹرائب کے ایپس وہاں پر حملہ کر کے بربادی مچا چکے تھے، ان کا پورا گھر، ان کے ٹرائب جل چکے تھے۔ نووا کے ٹرائبس کے ایپس کو ایپس کے لوگ بری طرح مار مار کر قیدی بنا رہے تھے۔ اچانک نووا کا دھیان اپنے ڈیڈ کی طرف جاتا ہے، جسے وہ ایپس مارنے ہی والے تھے۔ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے نووا اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے جاتا ہے، لیکن یہ ایپس نووا کو اٹھا کر وہاں سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد نووا کے فادر یعنی اس قبیلے کے لیڈر کو مار دیتے ہیں، اور نووا اس سب کے درمیان کچھ نہیں کر پایا تھا۔ لیڈر کے مرنے کے بعد ایپس کے لوگ نووا کے قبیلے کے سبھی ایپس کو بندی بنا لیتے ہیں اور انہیں لے جایا جاتا ہے سمندری ایپس کے لیڈر کے پاس، جس کا نام تھا اپروکسیمس۔ وہ ان سب لوگوں کو یہاں دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا۔ دوسری طرف ہم نووا کے قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ نووا کے ساتھ اس کے چند ساتھی ہی وہاں زندہ بچے ہیں۔ اسے ہوش میں آئے تو اس نے دیکھا اس کا پورا ٹرائب برباد ہو چکا ہے، اس کے ڈیڈ بھی مر گئے ہیں اور تقریباً سبھی ساتھیوں کو بندی بنا کر لے جایا جا چکا ہے، اور تکلیف کے پاس نووا کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ سب سے پہلے اپنے ڈیڈ کا فیونرل کرتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ڈیڈ میں لوں گا آپ کی موت کا بدلہ، میں آپ کے مارنے والوں کی زندگی برباد کر دوں گا اور اپنے سبھی ساتھیوں کو چھڑوا کر یہاں واپس لاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ نووا سمندر کی طرف اپنے سفر کے لیے نکل جاتا ہے، جہاں راستے میں اسے دوسری قسم کا ایک منکی ملتا ہے۔ یہ منکی دراصل ایپ سے بہت زیادہ ذہین ہے، وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ نووا کا کتابوں کے بارے میں پوچھنے پر وہ منکی بتاتا ہے کہ انہیں کتابیں کہتے ہیں، ان کے اندر بہت سے لفظ اور تصویریں بنی ہیں، جس میں ہر لفظ اور تصویر کا کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہے۔ یہ منکی نووا کو بتاتا ہے کہ پہلے زمانے میں یعنی سیزر کے زمانے میں بہت سے منکیز ایسے تھے جو ان کتابوں میں لکھی چیزوں کو پڑھ اور دیکھ سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے۔ نووا سوال کرتا ہے کہ سیزر کون ہے؟ وہ منکی بتاتا ہے کہ سیزر وہ پہلا منکی تھا جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ ایوولوٹ ہوئے، یعنی ہمارے میں بھی تبدیلیاں آئی اور ہم بھی سوچنے سمجھنے اور بولنے کے قابل ہوئے۔ سیزر نے ہی منکیز کو ایک ٹرائب کی صورت میں ساتھ مل کر رہنے کو کہا، سمجھ لو کہ وہ ہم سب کا پہلا لیڈر ہے۔ اسی نے ہم کو بتایا کہ ایک منکی کو دوسرے منکی کو
नहीं मारना चाहिए, चाहे वो इनकी नस्ल का है या नहीं। बातों ही बातों में वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी दौरान वो लड़के जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं, नोवा के घर के पास वो दोबारा यहाँ आ चुके खाने की तलाश में। उसे देखकर नोवा गुस्से में आ जाता है। इससे पहले कि वो उसके साथ कोई बुरा सलूक करता या उसे मारता, यहाँ बैठा हुआ दूसरा मंकी नोवा को रोक देता है और कहता है कि सीजर यानी हमारे सरदार इंसानों से बहुत प्यार किया करते थे, उन्हीं को देखते हुए हमें भी इंसानों से प्यार करना चाहिए। ये लोग उस लड़की को भी खाना देते हैं और यहाँ ये मंकी नोवा को इंसानों के बारे में बताता है कि एक वक्त वो भी था जब इंसानों के पास अकल हुआ करती थी, वो भी बोल पाते थे, सोचने समझने की सलाहियत रखते थे, और फिर वक्त गुजरा और इनकी सारी अकल चली गई और अब ये जानवरों की तरह रहते हैं। क्योंकि इन्होंने इस लड़की को खाना दिया था, इसलिए ये लड़की भी उनकी साथी बन जाती है। सुबह भी हो जाती है और नोवा अपना सफर कंटिन्यू करता है, जहाँ अब उसके साथ सफर में वो मंकी और लड़की भी थे। जंगल में थोड़ा ही आगे आने पर उन्हें बहुत से और इंसान दिखे थे जो पागलों की तरह जंगल में खाना ढूंढ रहे थे। असल में यहाँ पर समुद्री ट्राइब्स के एप आ गए और उन्होंने इंसानों पर हमला कर दिया। क्योंकि उन्हें इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, उन पर हमला कर दिया। यहाँ एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है और इसी तरह नोवा और उसका साथी किसी तरह इस लड़की को जान बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। जैसे ही वो लोग इसे बचाकर जंगल में दूर ले आए तो अब इस लड़की को इन दोनों के साथ रहना सेफ लगा। वो इन लोगों से पहली मर्तबा यहाँ बात करती है और बताती है कि मेरा नाम मे है। इन दोनों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया कि इंसान कैसे बोल सकते हैं। तब मे उन्हें बताती है कि मैं बाकी इंसानों से काफी अलग हूँ, क्योंकि वो बोल भी सकती थी और उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत थी और उसे कपड़े पहनना भी आते थे। वो लड़की इन्हें ये भी बताती है कि मेरा जिस कबीले से ताल्लुक था वहाँ सभी लोग ज़हीन थे, बोल सकते थे, लेकिन समुद्री ट्राइब ने अपनी नफरत के चलते हुए मेरे पूरे कबीले को मार डाला। बस मैं ही जिंदा बची। अब बातें बहुत हो चुकी थी लेकिन काम रहता था। नोवा को अपने लोगों को बचाने के लिए जाना था। ये लोग अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं और सफर करते करते पहुंच जाते हैं एक नदी के पुल पर। यही जगह दूसरे ट्राइब्स के इलाके में आती थी। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स इन पर हमला कर देते हैं और उनसे बचने के चक्कर में यहाँ इनकी लड़ाई हो जाती है और वो मंकी यहाँ करीब पानी में गिरकर बह जाता है। और दूसरी तरफ नोवा और मे को ये लोग बंदी बना लेते हैं। इन्हें लेके आया जाता है प्रोक्सिमस के पास, यानी समुद्री ट्राइब के लीडर के पास, जो कि बहुत ही बेरहम एप्स है। वो इंसानों से नफरत करता है। उसने हुक्म दिया हुआ है कि जो भी जब भी किसी इंसान को देखे तो उसे फौरन मार डाले। न सिर्फ ये कि बल्कि वो तो पूरी दुनिया के एप्स पर हुकूमत भी करना चाहता है। इसीलिए तो उसने दूसरे ट्राइब के लीडर यानी नोवा के डैड को मरवा दिया और उनके सभी एप्स को यहाँ बंदी बना लिया। देखने को मिलता है कि ये एप्स समंदर के बिल्कुल किनारे पर रहते हैं। अब समंदर का पानी इनके इलाके में ना आ जाए, इसलिए इन्होंने समंदर के किनारे एक बहुत ही बड़ी दीवार बनाई हुई है। ये इंटेलिजेंस का काम अप्रोक्सिमस ने इंसानों को देख देख कर किया। उसे इंसानों की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता था। उसके पास ह्यूमन मिलिट्री का एक बहुत बड़ा शिप भी था। इस शिप में एक बंकर था जिसमें मिलिट्री के बहुत सारे वेपन्स थे। इस बंकर का दरवाजा बंद है और ये हमेशा से इस बंकर का दरवाजा खुलवाने के लिए अपने बहुत सारे एप्स को काम पर लगा कर रखता है। लेकिन रोज कोशिश करने के बावजूद भी आज तक वो इस दरवाजे को नहीं खोल पाए। लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन जरूर वो इस बंकर के दरवाजे को खोलेगा। इसको खोलने के बाद वो इसके अंदर से सभी हथियार हासिल करेगा और सबसे पहले उन हथियारों के जरिए वो इंसानों को खत्म करेगा। इंसानों को मारने के साथ साथ उसका ये भी ख्वाब था कि वो सभी एप्स को अपना गुलाम बना ले, और ये तभी मुमकिन था जब इनके पास ये वेपन्स की पावर होती। अब सवाल ये था कि अप्रोक्सिमस इतनी इंसानों से नफरत क्यों करता था, क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि पास्ट में इंसान बंदरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वो या तो इन्हें जू की जेलों में रखते थे या अपना पेट बना लेते थे या गुलाम बना लेते थे। उसके दिल में डर था कि कहीं इंसानों के पास दोबारा सोचने समझने की सलाहियत आ गई तो वो दोबारा से बंदरों को अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन वो ऐसा कोई दिन देखने से पहले ही सभी इंसानों को खत्म कर देना चाहता था। हम देखते हैं नोवा को, जिसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है, वो यहाँ अपने ट्राइब के बहुत सारे लोगों से मिलता है। इस तरह उसके लोग सभी अप्रोक्सिमस के इरादे बता देते हैं कि कैसे वो इंसानों को मारना चाहता है और बाकी एप्स को बंदी बनाना चाहता है। इंसानों की तो ज्यादा नोवा को भी परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपने लोगों को बचाना चाहता था। उससे अप्रोक्सिमस के उस बंकर के बारे में भी पता चला जिसमें बहुत सारे वेपन्स हैं। और अब नोवा कुछ सोचते हुए मई के पास जाता है। मई भी यहाँ नोवा से कुछ बात करना चाहती है। नोवा को वो बताती है कि उसके जैसे बहुत से इंसान बहुत कमजोर हो चुके हैं। वो चाहती है कि इंसान पहले की तरह बोल पाए और इंसानों को बोलना सिखाने के लिए उन्हें एक लैंग्वेज बुक की जरूरत है, तो अप्रोक्सिमस के पास है जो बंकर के अंदर मौजूद है। मैं उस बंकर को खोलकर उस बुक को हासिल करना चाहती थी, जबकि यहाँ नोवा बताता है कि मैं उस बंकर को तबाह करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने ट्राइब के लोगों को छुड़वा सकूँ। जब ये बंकर तबाह हो जाएगा तो अप्रोक्सिमस की सारा गरूर और ताकत तबाह हो जाएगी और इस तरह मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। नोवा की ये सारी बातें सुनकर मई नोवा की हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। वो उस बंकर को तबाह करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी। वो चाहती थी कि वो बंकर को खोलकर पहले अपनी किताब ले। नोवा भी उसकी बात मान लेता है और ये लोग फैसला करते हैं कि आज रात ही वो अपना पूरा प्लान अंजाम देंगे। नोवा ने
उन्होंने प्लान बनाया कि वो एक बम बनाएंगे, उससे दीवार को तबाह करेंगे, जिससे यहाँ के लोगों ने समंदर के पानी को बचा के रखा हुआ है और अपने इलाके में आने से रोका हुआ है। उसके बाद वो लोग शिप में जाकर बंकर में से मई को मई की किताब देंगे और उसे तबाह करेंगे। लेकिन मई का प्लान थोड़ा चेंज था। वो नोवा और उसके दोस्तों को लेकर पहले बंकर तक जाती है और वहाँ से अपनी जरूरी किताब को हासिल करती है। वो जितने में अपनी किताब ढूंढ रही थी, इतने में नोवा और उसके साथियों को एक स्टोरी बुक मिलती है, जिसमें वो देखते हैं कि इंसानों ने कैसे बंदरों को कैद करके रखा हुआ था। ये देखने के बाद उन्हें भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो लोग इस बात को इग्नोर करके मई का साथ देना दोबारा शुरू कर देते हैं। ये लोग एक छोटे से होल के जरिए बंकर के अंदर गए थे और बाहर निकलने के लिए बड़ा ही आसान काम करते हैं, बंकर का बड़ा गेट खोल देते हैं। बंकर का बड़ा गेट खोलकर जैसे ही ये बाहर गए, बाहर अप्रोक्सिमस और उसके बंदे खड़े थे। उन्हें बंकर के अंदर से निकलता देखकर वो फौरन समझ गया कि ये जरूर इनके खिलाफ हैं और बहुत बड़ी कोई प्लानिंग चल रही है और उसकी जरूरत की चीजें भी जरूर इन्होंने बंकर के अंदर कहीं छुपा दी होंगी। अब असल सच्चाई क्या है, ये उगलवाने के लिए अप्रोक्सिमस नोवा के दोस्त पे चाकू रख देता है और नोवा को कहता है कि सारी कहानी बता दो वरना मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। इससे पहले कि कोई नोवा के साथी को नुकसान पहुंचाता, मैं उस एप को गोली मार देती है जिसने उसे बंदी बनाया हुआ था। एप को मारने के लिए मैंने गन से शूट किया था। इसको देखकर अप्रोक्सिमस इम्प्रेस हो जाता है। वो मैं से एक सौदा करता है, मैं तुम्हें और यहाँ सभी साथियों को ऐसे ही जाने दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे सारे वेपन्स दे दो। लेकिन मैं भी इतनी बेवकूफ नहीं थी, वो जानती थी अगर अप्रोक्सिमस के हाथ हथियार लग गए तो वो दोबारा उनके पीछे पड़ जाएगा। वो किसी भी हाल में उनके हाथ वेपन्स नहीं लगने देना चाहती थी। अप्रोक्सिमस उनके पीछे पड़ चुका था। इससे पहले कि वो उन पर हमला करता, मैं अपने साथियों के साथ दीवार में रखे हुए उस बॉम्ब को फोड़ देती है, जिस दीवार से समंदर का पानी रुका हुआ था। उसके ऐसे करते ही दीवार टूट जाती है और समंदर का पानी ट्राइब में आ जाता है और सभी एप्स को बहा ले जाता है। नोवा के ट्राइब के एप जंगल में रहते थे, इसलिए उन्हें दरख्तों पर चढ़ने की काफी प्रैक्टिस थी। वो यहाँ अपने आप को बचाने के लिए दरख्तों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अप्रोक्सिमस के साथी सारे ही बह गए थे। नोवा के ट्राइब के सभी साथी जिंदा थे, इसीलिए वो अपने ट्राइब में वापस आ जाते हैं। अभी उन्होंने सुकून का सांस ही नहीं लिया था कि दोबारा अप्रोक्सिमस उन पर हमला कर देता है। वो यहाँ आकर सबसे कहता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो और सब बस मेरी ही गुलामी करोगे। उसके ऐसा सुनते ही नोवा को गुस्सा आया और गुस्से को जाहिर करने के लिए उसने अपने मुंह से वो साउंड निकाला जो वो ईगल पेट को बुलाने के लिए करते थे। उसकी आवाज सुनते ही सारी ही पेट ईगल्स वहाँ आ गई और नोवा के इशारा करते ही पेट ईगल्स अप्रोक्सिमस को वहाँ से उठाकर दूर ले गई और पहाड़ से दूर ले जाकर समंदर में फेंक दिया। और यहाँ फाइनली इन सब की जान अप्रोक्सिमस से छूट जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोवा उसके सभी साथी दोबारा अपने घरों को वापस आते हैं और यहाँ पहले जैसी सुकून वाली जिंदगी गुजारते हैं। मूवी के एंड के सीन में हमें मई को दिखाया जाता है जो नोवा के पास आई है। नोवा मई से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि मई ने उसे धोखा दिया था। जो बॉम्ब उन्होंने बंकर को तबाह करने के लिए बनाया था, उस बॉम्ब का इस्तेमाल मई ने दीवार तोड़ने के लिए किया था और इस धोखे से उसने ये सबक सीखा था कि उन्हें कभी भी इंसानों पर एतबार नहीं करना चाहिए और अब अपने आप को इतना डेवलप करना है कि ना कोई उन्हें हरा पाए और ना ही कभी उन्हें धोखा देकर कैद कर पाए। जबकि दूसरी तरफ इंसान तो अपनी ही प्लानिंग में थे। मैंने असल में बंकर से जो किताब उठाई थी वो कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि सैटेलाइट की बुक थी जिसमें सैटेलाइट को बनाने और उसको ठीक करने का पूरा तरीका लिखा हुआ था। मैं इस किताब को लेकर बहुत सारे इंसानों के पास आ जाती है, जहां हम ये देखते हैं कि मैं जैसे बहुत सारे समझ बूझ वाले इंसान अभी भी जिंदा हैं और वो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अपने ही जैसे और इंसानों से कांटेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए वो एक सैटेलाइट ठीक कर रहे थे। मैं की इस किताब मिलने के बाद वो इस सैटेलाइट को ठीक कर लेते हैं और दूसरे इंसानों से कांटेक्ट ही कर लेते हैं। उनके कांटेक्ट करते ही उन्हें पता चलता है कि दुनिया में भी बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनके पास बोलने की पावर है और सोचने समझने की सलाहियत भी। अब इन लोगों ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और अपने आप को डेवलप करने की ठान ली ताकि वो इन एप्स की गुलामी से बच जाएं। और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।